Jai Shri Mahakal, how is everybody? जय श्री माता। Kindly turn your cameras on. क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है आज? What are we supposed to learn? सर आपका 2020 के समय तो ये मंडली गुली का ये केतु ये सब आप पढ़ा दिए थे क्या? नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा है अभी. Good question. So, before beginning this course, let's all remember Lord Ganesha and remember your gurus, and then we'll begin the core of Vedic astrology, something which is different than usual. Okay. Should you be worried of something which you can see, know, or you should be worried of something which you don't know, which is dark, which you cannot see, which you cannot hear, which you cannot contact? So, what will you actually fear? Will you fear something that is known to you? For example, you'll be afraid of somebody having a weapon in their hand and they are chasing you. Will you be feared of them? Well, in that case, you can actually prepare for defense because you will know when the attack is going to happen. You will know when this thing is going to disturb you. You will know the worst case scenarios. अगर किसी के हाथ में चाकू है और वो आपके पीछे भाग रहा है तो आपको पता है वर्स्ट केस क्या है. अगर बंदूक है तो तुम्हें पता है कि वर्स्ट केस क्या है. अगर कोई लॉयर तुम्हारे खिलाफ है तो तुम्हें पता है वर्स्ट केस क्या है. अगर कोई जज तुम्हारे खिलाफ है तो तुम्हें पता है वर्स्ट केस क्या है. वर्स्ट केस तुम्हें कैसे पता चलता है? तुम उसको देख करके उसकी काबिलियत को परख लेते हो. तुम उसको देख करके उसकी काबिलियत को परख लेते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम दिस कैन डू. एंड दैट इज़ द केस विद ग्रहस. एनी ग्रह. कौन कौन है ग्रह जी? नेम द ग्रहस. द फर्स्ट ग्रह इज सूर्य. सेकंड ग्रह इज चंद्र. थर्ड ग्रह इज बुध. फोर्थ ग्रह इज मंगल. एक्चुअली मंगला इज थर्ड एंड फोर्थ इज बुध, वट एवर. ठीक है. देन इट इज गुरु. देन इट इज शनि. देर आर ओनली 7 मेन ग्रहs with physical existence. But there are 2 grahas who doesn't have physical existence. And that is what makes them worse. That is what makes them problematic. That is the darkness which is their power and your weakness. Their power is in unknown. You cannot see Rahu, you cannot see Ketu, but they are there. Their strength is in being unknown, and your weakness is in being unknown. But इनसे भी ज़्यादा अननोन एक और डार्कर शैडो प्लैनेट्स हैं जो कि नॉर्मल प्लैनेट्स नहीं हैं, जो आम ग्रहों की डेफिनेशन से बाहर हैं. उनको कहा जाता है उपग्रह. क्या कहा जाता है?
आज हम पढ़ेंगे जो तने जी ने स्टार्टिंग में बोला कि सर ये सब पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ाया था, ये एक्सटेंडेड का पार्ट है. So today we'll learn Upgrahas, the grahas who are beyond the grahas which have extreme power, even more than these. These could be giving you $1 million, and then one of the darker shadow will say, no, 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 no. I will not let you give him this money. इट इज जस्ट लाइक कि सूर्य आपके घर आ रहे हैं $1 मिलियन लेके और रास्ते में ही एक शेडो ने वो पैसे गायब कर दिए. आप तक आते आते वो पैसे कितने रह गए? वो $10 रह गए, $20 रह गए, $100 रह गए, बस. सो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द विपरीत एनर्जीज, द एनर्जी ऑफ ऑपोजिशन, द एनर्जी जो ग्रहों को उन्हीं की ऑपोजिशन फोर्स की तरफ ले जाती हैं. We will learn the best placements of it, we'll learn the worst placements of it, and we'll learn some kind of remedies for it. But before that, I have made some notes and we'll go by shloka. Anybody who's good at Sanskrit can read this shloka. I'll just go to the meaning. So श्लोक कहता है कि सूर्य के पुत्र हैं. श्लोक कहता है सूर्य से कुछ एनर्जीज का जन्म होता है. कौन सी एनर्जीज का जन्म होता है? सूर्य से धूमा का जन्म होता है, ठीक है, व्यतिपता का जन्म होता है, परिवेशा का जन्म होता है, इंद्रकपा का जन्म होता है और उपकेतु का जन्म होता है. ये जन्म किससे होता है? सूर्य से होता है. सूर्य के 5 तत्व, सूर्य की 5 एनर्जीज, 5 लाइट्स यहां पर आती हैं. अब हमने तो बात की थी 7 लाइट्स होती हैं. What about other 2 lights? The other 2 lights is the light of Surya himself, that is the first light. And second light is the reflection that is being formed on the Chandra, and you get that reflection back. So there are total 7 lights. 5 of them are in their upagrahas and 2 of them is the sun's light and moon's light. 2 ही लाइट्स आती हैं आपके पास. जो नेचुरल लाइट्स के नाम पर हमारे पास 2 ही लाइट्स अवेलेबल हैं, दैट इज सनलाइट एंड मून लाइट. देयर इज नो थर्ड नेचुरल लाइट जिसको आप कह सकते हो, ठीक है. सो ये जो बाकी की हैं, ये 5 अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं जो हमारी आईज को इनविजिबल हैं. आप सूर्य को देख सकते हो, आप चंद्र को देख सकते हो, आप धूमा को नहीं देख सकते, आप व्यतिपता को नहीं देख सकते, आप परिवेशा को नहीं देख सकते, इंद्रकपा को नहीं देख सकते, उपकेतु को नहीं देख सकते. अब पराशरा ने इसको सोलर उपग्रह बोले हैं. 2 पार्ट्स में उपग्रह डिवाइडेड हैं. एक सोलर उपग्रह हैं और दूसरे शनि के पुत्र हैं. क्या हैं? शनि के पुत्र हैं. तो टोटल 10 हैं हमारे पास. 5 सूर्य के साथ कनेक्टेड हैं और 5 शनि के साथ कनेक्टेड हैं. जो सूर्य के साथ कनेक्टेड हैं वो आपको सोल लेवल पर इफेक्ट करते हैं. किस लेवल पर इफेक्ट करते हैं? सोल लेवल पर इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उपाकेतु विल इफेक्ट यू ऑन सोल लेवल. योर सोल्स सफरिंग, योर सोल्स जर्नी, योर सोल्स पास्ट लाइफ वुंड्स. हु वर यू इन पास्ट लाइफ? डू यू नो हु यू वर इन पास्ट लाइफ? Were you Indu? Were you Suveksha? Were you Ritu? Were you Seema? Were you Mitesh, Tane, Kajol, whatever? Were you that? No, you were somebody else in some other body. But what you are carrying is the patterns, imprints on the soul. And those imprints are seen by Upaketu. Wherever is Upaketu, that is a reason of your wounds, reason of your sufferings, reason of your crying, and reason of your unknown fears. मे बी आपका पास्ट लाइफ में जो डेथ है वो डूबने की वजह से हुई हो, तो इस जन्म में आपको पानी से डर लगेगा, तो आपको उपाकेतु वाटर साइन में मिलेगा. जलने की वजह से हुई हो तो शायद आपको हॉट साइन में उपाकेतु होगा, आपको आग से डर लगेगा, आपको गर्मी प्रॉब्लम कॉज करेगी. यदि उपाकेतु एयर साइन में हो तो आपको हाइट से डर लगेगा, आपको हवाई जहाज से डर लगेगा, आपको स्पीड से डर लगेगा. क्यों? क्योंकि वजहें आपके सोल पर इंप्रिंटेड हैं.
So always remember the soul imprints are seen by Upaketu. I'll come to every planet one by one, but अभी के लिए मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए उपकेतु का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो 5 सोलर डिविजन्स हैं, जो 5 सोलर उपग्रह हैं, ये आपको सोल लेवल पर परेशान करते हैं। दूसरे नंबर पे, बिकॉज दीज उपग्रहs आर born from सूर्य in Gemini Jyotish, whatever is Surya as a Karka, whatever Surya is a Karka, you will carry those imprints. For example, if Surya is Matri Karka, then wherever is Upaketu, you will have problems with your mother, or your mother will have problems related to that house, or your comforts will suffer from that particular house. ठीक है, जस्ट जेमिनी का पार्ट बता रहा हूं अभी के लिए, विल जस्ट लीव जेमिनी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हियर। ठीक है, दे आर नॉट फिजिकल प्लैनेट्स, दे अराइज फ्रॉम काल, दे अराइज फ्रॉम टाइम। ठीक है, व्हाट आर उपग्रह? उपग्रह होते कौन है? दे आर द सेकेंडरी प्लैनेट, दे आर नॉन फिजिकल, दे आर शेडो, दे आर टाइम जनरेटेड पॉइंट्स। हु आर दे? टाइम जनरेटेड points. They arise from sun's daily motion and Saturn's principle of suffering and karma. याद रखना, सैटर्न के होरा से या सैटर्न की प्लेसमेंट से सैटर्न के उपग्रह कैलकुलेट होते हैं, और सूर्य की मूवमेंट से सूर्य के उपग्रह कैलकुलेट होते हैं। अभी मैं कैलकुलेशन मैथ्स में नहीं जाऊंगा, बट यू हैव टू टेक द डेली मोशन ऑफ सैटर्न, यू हैव टू टेक द डेली मोशन ऑफ सूर्य टू कैलकुलेट these shadow points. कोई कंफ्यूजन यहां तक? गॉट इट। अब का पराशर कहते हैं कि ये कौन है? ये आपके कार्मिक इंडिकेटर्स हैं, ये आपके पनिशमेंट बेयरिंग एंटिटीज हैं, ये पाप के एजेंट हैं, रोग के एजेंट हैं, बंधन के एजेंट हैं और दुख के एजेंट हैं। और यदि आपके जीवन में ये 5 चीजें 4 चीजें नहीं है, ना आपके जीवन में पाप है, ना आपके जीवन में डिजीज है, ना बॉन्डेज है और ना सॉरो है, तो फिर आपका जीने का कोई वजह नहीं रहेगा। ठीक है, यू हैव टू बी अ बिट सैड, you have to be a bit sinful, you have to carry some kind of roga. It could be mental roga, it could be spiritual roga, it could be physical roga, and you have to carry some kind of bondage. Without these you cannot exist. So according to my guru, these are the planets who can actually give you ultimate results on worldly level. क्यों? जितना बड़ा पाप उतना ज्यादा पैसा, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा पैसा, उतना ज्यादा इंजॉयमेंट। आपको इंजॉयमेंट कहां से मिलती है? आपको हमेशा अपने जीवन में इंजॉयमेंट पाप से मिलती है, पुण्य से इंजॉयमेंट नहीं मिलती। इंजॉयमेंट मिलती है पाप से। पुण्य से तो आशीर्वाद मिलता है, ठीक है, पुण्य से क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, लेकिन पाप से आपको मिलती है इंजॉयमेंट। तो यदि आपको अपने जीवन में इंजॉयमेंट चाहिए तो आपको जीवन में पाप करना पड़ेगा, और पाप करने के लिए आपको इन ग्रहों को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इन ग्रहों का यूज कर करके आप लाइफ में बहुत राइज कर सकते हो। ठीक है, बट दैट इज टोटली ऑन यू, हाउ यू विल यूज दिस ग्रहस टू टेक बेस्ट रिजल्ट्स। बट रिमेंबर, दे आर द हिडन प्राइज ऑफ द कर्मा, कि तुम हिडन प्राइज क्या पे कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पास 5 करोड़ की गाड़ी है, वेरी गुड, कोई ना कोई पाप किया होगा तो 5 करोड़ की गाड़ी आई होगी, किसी से 5 करोड़ छीने हैं तभी तुम्हारे पास हैं, ठीक है ना, अदरवाइज तुम्हारे पास पैसा नहीं आ सकता। तुम्हारे पास जो भी है वो दूसरों का ही है, तुम्हारे पास जो भी है दूसरों का ही है। तो आपने वो दूसरों की चीज खुद तक लाने के लिए क्या प्राइस पे किया है, यानी कि इस लाइफ में आपको जो चीजें मिली हैं उसके लिए आपने क्या प्राइस पे किया है, ये आप उपग्रहों से जान सकते हो। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई कि यूजुअली आप उपग्रहों के बारे में कहीं भी पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे तो आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है। उपग्रहs could bring you very good results only if you are ready to be sinful. But I don't know what's the definition of पापा and पुण्य। अभी कलयुग में तो कोई डेफिनेशन ही नहीं सेट बैठती है पाप और पुण्य की, सभी एक ही है। बट स्टिल
पापा एंड पुण्य, अगेन माय डेफिनेशन इज जब तक तुम्हारी वजह से किसी को कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता तब तक वो पुण्य ही है, वो पाप नहीं है. बट दैट्स माय डेफिनेशन, डोंट फॉलो मी ऑन इट. सो उपग्रहों की वजह क्या थी? उपग्रहों की वजह क्या थी? क्योंकि राशि और ग्रह जो हैं वो एक्सट्रीम सफरिंग्स को नहीं दिखा सकते. हाउ विल यू नो डेथ विदाउट वार्निंग? विच प्लैनेट विल यू सी? यू विल सी नो प्लैनेट. कोई ग्रहों में आप अच्छे से अच्छे चार्ट देखो जिनकी डेथ हो गई बिना किसी वार्निंग के, सडन बैठे बैठे चले गए. कैसे चले गए? आप चार्ट में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. सूर्य से लेके राहु केतु तक यदि आप ग्रह यूज करोगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो. हाँ, कान ऐसे नहीं वैसे करके पकड़ लो, लगेगा कि पकड़ लिया है लेकिन पकड़ा नहीं होगा. सो जब, अब इसके मैं अभी पॉजिटिव पार्ट्स पे भी आऊंगा. क्रॉनिक इलनेस विद नो बेनिफिट कॉम्बिनेशन. बच्चा पैदा ही बीमारी से हुआ. अरे यार, एक ही हॉस्पिटल में 5 बेड पर बच्चे पैदा हुए और एक को बीच में से परेशानी हुई. क्यों एक ही को क्यों हुई? सबके ग्रह तो सेम है, सबका बर्थ सुबह 4 AM का है. Some 5 children, actually 9 children took birth in a hospital room adjacent to each other. One was born with schizophrenia, one was born with some kind of mental illness. Why? Other 8 were healthy. In that case you need upagraha of the father and mother. In that you will see, यदि पिता के 5th हाउस में मांदी है और मदर के 5th लॉर्ड के साथ मांदी है, मांदी में सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसको सबसे एक्सट्रीम उपग्रह माना जाता है, तो ऐसे केसेस में चाइल्ड को प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन इट फ्रॉम अ चाइल्ड्स चार्ट. वो तो फिर कहेंगे यार 2 बच्चे साथ साथ पैदा हुए, सेम टाइम ऑफ बर्थ, सेम प्लेस ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ, सूर्य लगन में, फिर भी. तो यहां पर आपको क्या चाहिए होगा? आपको उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी. दूसरी चीज, क्रिमिनल टेंडेंसीज. मैंने कहा ना, सिंफुलनेस, कितना पाप करने को तुम रेडी हो, यह भी उपग्रह बता देते हैं कि एक इंसान कितना पापी हो सकता है, किस एक्सट्रीम तक जा सकता है टू फुलफिल वॉट एवर ही इज गोइंग टू. ब्लैक मैजिक करना या होना, कर्सेस देना या कर्स्ड होना, एंसेस्ट्रल सिंस क्रिएट करना या पुराने सिंस को फेस करना, मेंटल डार्कनेस और डिसअपेयर, याद देना या फेस करना, ये सब उपग्रहों का पार्ट है. वेयर द प्लैनेट्स फेल टू स्पीक क्लियरली, उपग्रह स्पीक द ट्रुथ. अब एक बात याद रख लेना, वट एवर कैन ब्रिंग एक्सट्रीम सफरिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस. Whatever can bring extreme sufferings can also bring extreme happiness. आपको जिनसे सबसे ज्यादा सफरिंग होती है उन्हीं से सबसे ज्यादा खुशी भी होती है. ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, शादी का रिलेशन ले लो, हस्बैंड वाइफ, दे आर मोस्ट सफरिंग विद ईच अदर एंड दे आर मोस्ट हैप्पी विद ईच अदर. ठीक है, तो यही केस है उपग्रहों का. They will suffer and they will yet make you enjoy. तो उपग्रहों का जब पॉजिटिव यूज देखना है ना, तो वो हम पॉजिटिव यूज भी अभी आगे हम आते हैं कि कैसे है. अभी क्रिमिनल टेंडेंसीज का मैं एग्जांपल दे देता हूं. पॉजिटिव यूज, दृश्यम देखी सबने? अब दृश्यम नहीं देखी? सीमा जी दृश्यम नहीं देखी? दृश्यम देखो यार. दृश्यम में फादर अपनी बेटी का क्राइम छुपाने के लिए वो कितने एफर्ट्स डालता है. दैट इज हिज क्रिमिनल टेंडेंसी. दैट विल ओनली बी सीन बाय उपग्रह एंड नॉट बाय द नॉर्मल ग्रह. आप नॉर्मल ग्रह से नहीं देख सकते हो. ठीक है, आई गिव यू एन एग्जांपल. गुलिका या मांदी का लगन में आना, दिस विल गिव यू क्रिमिनल टेंडेंसीज. अब वो उसको अच्छे के लिए यूज करता है कि बुरे के लिए यूज करता है, वो अब बाद की बात है, उस पर आज का हमारा टॉपिक नहीं है. ठीक है, क्रिमिनल टेंडेंसी कुड बी गुड टू, आप यूज कर सकते हो अच्छे के लिए. अभी 5 कौन से हैं जी? दीज आर साइकोलॉजिकल एंड कार्मिक प्लैनेट्स. सबसे पहले है धूमा.
धूमा हैज एक्चुअली टेकन बर्थ फ्रॉम राहु प्लस सैटर्न प्रिंसिपल, ठीक है। और यदि धूमा चंद्र को खराब करे तो इंसान का दिमाग क्लाउडेड हो जाता है, कंफ्यूजन, मेंटल फॉग, डिसेप्शन, एडिक्शन और एस्केपिज्म आता है। यदि आपकी कुंडली में कैंसर साइन में धूमा चला जाए या धूमा चंद्र के साथ युति बना ले, अब देखने को हो सकता है चंद्र एग्जॉल्टेड हो, 2 नंबर का चंद्र है, साथ में जुपिटर हो या जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा हो, तो आप कहेंगे कि यह तो बहुत अच्छा योग है, यहां तो चंद्र बहुत अच्छा है। लेकिन यदि इसके साथ धूमा आ जाए या कैंसर साइन में धूमा आ जाए तो सारी की सारी चंद्र की पॉजिटिव एबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। यहां पर चंद्र कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मेंटल फॉग, डिसेप्शन, एडिक्शन, एस्केपिज्म एंड वट एवर यू नो अबाउट द नेगेटिव चंद्र, यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, अभी ये मैंने यहां चंद्र क्यों मेंशन किया? हर ग्रह किसी एक ग्रह को पकड़ता है नेगेटिव रिजल्ट के लिए। यदि धूमा बुध के साथ चला जाए तो बहुत पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज नाउ बुद्धा विल बी एबल टू कॉज कंफ्यूजन टू अदर्स, विल बी एबल टू कॉज मेंटल फॉग टू अदर्स, विल बी एबल टू have some deception which is healthy deception in him, and he will make other people addicted to him, and he will just escape at the right moment. So dhuma is good if with Mercury but is not good if with Chandra. ठीक है, अब मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेंगी. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू प्रिजर्व. ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू बी एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजर्स एंड देन आई एम शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू. ओके, नेक्स्ट इज व्यतिपता. अब व्यतिपता का जो मेन काम है ना, ये वर्ल्डली इवेंट्स के लिए है. आप चार्ट देख के कह सकते हो अरे अर्थक्वेक आ सकता है, वॉर्स हो सकती हैं, सडन डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, सडन डिजास्टर्स आ सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होने की पॉसिबिलिटी है. ये व्यतिपता जो है आपको देखना पड़ेगा. पर्सनल चार्ट में ये क्या करता है? सिर्फ सडन फॉल और अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल्स, यानी कि चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने का इसका काम है. ठीक है, कोई काम सीधा सीधा चल रहा है. एग्जांपल, अभी ये जो, इनको ध्यान से समझो, ये क्या इफेक्ट करेंगी? डेली टास्क इफेक्ट करेंगी. यदि एकदम से अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा? आपने आज जॉब पे जाना था लेकिन अर्थक्वेक आ गया, व्हाट विल यू डू? यू विल नॉट रीच योर जॉब, राइट? आपको आज कोई एबीसी इंटरव्यू देनी थी लेकिन इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, सारा इंडिया बंद हो गया, ब्लैकआउट हो गया. व्हाट विल यू डू? विल यू डू द इंटरव्यू? You will not do the interview. So the planet which is responsible to stop the daily tasks, the planet who is responsible of stopping the daily tasks is Vyatipata. यूजली इसको हम वर्ल्डली लेवल पर लेते हैं, पर्सनल चार्ट्स में यूजली नहीं लेते हैं. लेकिन अगर आपको वर्ल्डली की जगह पर इसको पर्सनल चार्ट्स में लेना है ना, तो मैं आपको सलाह दूंगा, इसको आप राशि के साथ मत देखना. अगर ये अकेला कहीं बैठा है तो इसको मत देखना. लेकिन अगर ये किसी कारक के साथ बैठा है तो ये रिवर्सल्स ले आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि ये दारा कारक के साथ बैठा है, नाउ दारा कारक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मैरिज. यदि व्यतिपता दारा कारक के साथ है तो आपको रिश्ता आते आते रह जाएगा. लड़की वाले घर आएंगे लेकिन कहेंगे नहीं, बात नहीं बनी, या लड़के वाले घर आएंगे कहेंगे बात नहीं बनी. वो रिवर्सल हो जाएगा. जो चीज आज होनी चाहिए थी, अभी होनी चाहिए थी, उसमें डिले लगा देगा, उसमें ब्रेक लगा देगा, उसको फेल कर देगा. दैट इज हिज टास्क. मातृकारक के साथ है तो घर बनाने में दिक्कत आएगी. ठीक है, प्रॉपर्टी लेते लेते रह जाओगे, व्हीकल लेते लेते रह जाओगे, व्हीकल चलाते चलाते रह जाओगे. तो इसी तरह से आप बाकी कारकों के साथ इसको निकाल सकते हो. ठीक है, अब अगर गनाती कारक के साथ है तो ये अच्छा है. क्यों? डिजीज होता होता रह जाएगा, आप एज पर बचोगे. आप किसी के घर गए, वहां पे कोई कम्युनिकेबल डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, लेट सपोज कि आप किसी एबीसी हेल्थ होम गए, वहां पे आप एक बेडरूम में गए और वहां 5 टीबी पेशेंट्स थे. ठीक है, और पांचों के पांचों टीबी पेशेंट्स हैं, वो खांसी कर रहे थे और आप उनके बिल्कुल पास ही रहे 1-2 घंटे. लेकिन क्योंकि गनाती कारक व्यतिपता के साथ है तो टीबी आप तक आते आते वापस लौट जाएगा.
आपको वो चीज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज परिवेशा। अब ये इल्यूजन है, ये फेक रेपुटेशन है, वट एवर। ओके, दिस इज अनदर राहु, दिस इज अनदर राहु। आपने सूर्य के आसपास का प्रकाश देखा है? जब आप सन को देखते हो तो आपको दो सन नजर आते हैं। ध्यान से सन को अगर कोई देखे तो आपको सन दो नजर आते हैं, उसकी लाइट ऐसे 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 होती नजर आती है, साइड पे एक एक्स्ट्रा लाइट दिखती है। वो जो एक्स्ट्रा लाइट दिखती है वो परिवेशा है, ठीक है? वो है नहीं, वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तो जहां भी अगर परिवेशा 10th हाउस में चला जाए तो आपकी फेक जॉब होएगी, आप 3rd हाउस में चले जाए तो आप फेक सर्टिफिकेट्स बनवाओगे, ठीक है? 7th हाउस में चला जाए तो फेक मैरिज होएगी, मैरिज होते हुए भी नहीं होएगी। अब कुछ लोग फेक मैरिज करते हैं, बताओ यार कहां से देखोगे आप? ये जो यूएस कनाडा इधर उधर कंट्रीज में जाते हैं सिर्फ शादी करके पीआर लेने के लिए, हाउ विल यू सी? You have to see Parivesa. If it is in the 7th house with 7 Lord or with Dara Karka, a person could actually marry a fake person. A person could actually have a fake marriage, contract marriage. That is a possibility. How else will you see with the 7 planets? With नौ, बाकी के 9 प्लैनेट से कैसे देखोगे? नहीं देख सकते आप, आपको उपग्रह की जरूरत पड़ेगी। So this will bring hall of fame. अच्छा, अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि करे कोई फायदा तुम्हें हो जाए, करे कोई फायदा तुम्हें हो जाए, यानी कि नाम के लिए रिसर्च तुम्हारी हो कि किसी और ने हो, तो ये आपको फायदा भी दे सकता है, ठीक है? अब इससे फायदा लेने का आपको तरीका आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5th हाउस में है तो अब इसका खुद आप पॉजिटिव नेगेटिव निकालो, मेरे माइंड में कुछ और चला गया था। सो ओके, बट या इट कुड बी परिवेशा कैन बी नेगेटिव इन 5th हाउस, इट कैन बी नेगेटिव इन 7th, इट कैन बी नेगेटिव इन 10th, बट इट इज वेरी गुड इन 3rd। क्यों 3rd में अच्छा क्यों है? आपको फेक सपोर्ट मिलती रहती है, हो या ना हो, लेकिन कहने को सपोर्ट मिलती रहती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, लाइफ में याद रखना, यू डोंट रियली नीड ट्रू सपोर्ट, फेक सपोर्ट इज इनफ। ट्रू सपोर्ट आपको सिर्फ अपनी ही होती है, ठीक है ना? बाकी फेक सपोर्ट बहुत है, ठीक है यार, 2-3 दोस्त हैं जो बीच बीच में कह देते हैं हाँ हाँ कोई नहीं कर ले देखी जाएगी, चाहे उन्होंने कहीं काम नहीं आना, लेकिन उनका वो इतना कहना ही बहुत होता है। सो फेक सपोर्ट इज काइंड ऑफ गुड, एटलीस्ट देयर इज सपोर्ट चाहे फेक है। नेक्स्ट इज इंद्र कपा। इंद्र कपा इज ए टेम्परेरी रिलीफ, दिस इज शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। 7th हाउस में चला गया तो शादी टेम्परेरीली चलेगी, 5th हाउस में चला गया तो हॉबी टेम्परेरीली चलेगी, 10th हाउस में चला गया तो काम टेम्परेरीली करोगे। आपको कोई भी काम से टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ये इंद्र कपा की खासियत है। क्यों है? वाई टेम्परेरी? इट इज अ रेनबो, इसको रेनबो के साथ बोला गया। रेनबो क्या है? बड़ा अच्छा अच्छा लगता है थोड़े टाइम जब रेनबो होता है, उसके बाद रेनबो चला जाता है, ठीक है? सो ये इसको यूज करने का भी एक तरीका है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे। रेमेडी में जो है मेरे को याद करा देना। वी कैन एक्चुअली पुट इंद्र कपा इन अ टेम्परेरी हाउस फॉर अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कहता है जी चलो वो एग्जाम्पल देता हूं, कोई जेल जाने वाला है, कोई जेल जाने वाला है, उसने पूरी उसके योग हैं जेल जाने के। अब आपके पास वो आया तो आप उसको कैसे बचाओगे? आप इंद्र कपा को ऐसी जगह पे प्लेस करोगे कि उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सके, वो अच्छे एडवोकेट तक पहुंच सके, वो अच्छे जज को अप्रोच कर सके, या वो अपना पक्ष रख सके। तो जहां पर भी आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए वहां पे इंद्र कपा विल बी नीडेड, विदाउट हिम यू कैन नॉट, ठीक है? और ये शॉर्ट लिफ्ट हैप्पीनेस होती है मेन। तो जहां पर भी आपके इंद्र कपा है वहां पे आप बहुत कम समय के लिए खुश रहते हो, लंबे समय के लिए खुश नहीं रहते हो। और इसमें सलाह ये रहती है कि शॉर्ट टर्म के लिए बार बार खुश रहो, ठीक है? सो बीच बीच में सैडनेस ले आओ उसी चीज को लेके, और फिर खुश हो जाओ, फिर सैड हो जाओ, फिर खुश हो जाओ।
नेक्स्ट इज उपकेतु. उपकेतु इज योर स्पिरिचुअल वुंड्स. ये मैंने ग्रुप में भी डाला था एक वॉइस मैसेज के रूप में आपको कि ये आपके हिडन फियर्स हैं, सडन सेपरेशंस हैं और स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है जो आप पुराने लाइफ से लेकर आ रहे हो. ठीक है. सो दिस इज योर पास्ट लाइफ स्कार्स, आपकी सोल के ऊपर पड़े हुए इम्प्रिंट्स जिसे आपको हील करना है. फॉर एग्जाम्पल उपकेतु इज विद वीनस. यदि उपकेतु शुक्र के साथ चला गया तो आपको लव, अफेयर्स, ये सब चीजों के पास्ट लाइफ स्कार्स हैं. सूर्य के साथ चला गया तो अथॉरिटी के साथ, जॉब के साथ, फादर के साथ इश्यूज हैं. ठीक है. जुपिटर के साथ चला गया तो आप सारी जिंदगी रेपुटेशन ही नहीं बना पाओगे. आप सारी जिंदगी, आपको पैसे से डर लगेगा, कमाने से डर लगेगा. सो उपकेतु जिस भी ग्रह के साथ चला जाएगा उसके कारक तत्व में आपके माइंड में एक फियर ले आएगा. आप डरना शुरू हो जाओगे उस चीज से. ठीक है. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, थर्ड हाउस में है तो आप कम्युनिकेशन से डरोगे. यू विल नॉट वॉन्ट टू कम्युनिकेट द राइट थिंग. फोर्थ हाउस में चला गया तो आप कंफर्ट जोन से डरोगे, आप अपने ही घर में डरोगे. ट्वेल्थ में चला गया आप ड्रीम्स में डरोगे. रात को सोने वक्त डर लगता है. क्यों लगता है? कई लोगों को बड़ा डर लगता है रात को. ट्वेल्थ हाउस इज ऑल्सो इंटीमेसी. सो फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ बीइंग टुगेदर, फियर ऑफ शेयरिंग एनर्जीज. ट्वेल्थ हाउस. लग्न में चला गया तो ऐसा इंसान अपने ही अंदर चीजों को छुपा के रख लेता है, एक्सप्रेस ही नहीं करता. बेस्ट प्लेसमेंट फॉर उपकेतु, what will be the best placement for upaketu? I'll say third house. Why? You should be having fear of actions. आपको कोई भी काम करने से पहले डरना जरूरी है. डरोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो सिन नहीं करोगे. ठीक है. हाँ जी इंदु जी. ये उपकेतु इज रिटन एज शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूके. तो यूपी ही होगा ना कोई उपकेतु तो. उपकेतु ना, हाँ, यू एन के. हाँ यूके बिल्कुल. हाँ सर, मेरा है वीनस के साथ में. हाँ तो यू विल बी हैविंग फियर ऑफ लव. उसको कैसे डिफाइन करेंगे? फियर ऑफ लव, लाइक ये अब आप पता नहीं, शायद मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. ये आप खुद डिफाइन करेंगे. मैं हर किसी के लिए अलग डेफिनेशन है. अब वीनस कारका किस चीज का है? अमत्य कारक. अमत्या कारक. सो अमत्या कारक. अब शी विल नॉट वांट टू अर्न सिनफुल मनी. गलत पैसा नहीं कमा Then it's पाएंगे. right. डरते रहेंगे हर बार. मौका होगा करने का, करेंगे. नहीं यार मैं नहीं कर सकती. I got a lot of opportunity. ठीक है. बट शी विल नॉट डू इट. व्हाई? बिकॉज इट इज विद अमत्या कारका. ठीक है. सो दैट इज योर शेडो ऑफ केतु. चलो अब हमारे खत्म हो गए हैं सूर्य के 5 उपग्रह. अब हम चलेंगे शनि पे. किसी को कोई यहां तक कंफ्यूजन, क्वेश्चन, डाउट? सर ये क्या पांचों के पांचों सब रहते हैं चार्ट में? आपने बोला था सभी पिछले रहते क्लास में हैं. कि सभी नहीं. रहते हैं. नहीं सभी रहते हैं. क्यों नहीं रहते? आपने कहा कि कोई एक रहता है तो फिर बाकी नहीं रहते. मैंने शायद मिस कर दिया, वो याद नहीं आ रहा मुझे. नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा हो सकता. एक टाइम पे एक एक्टिव होते हैं, बोला एक था ना। टाइम पर एक एक्टिव. हाँ यस. ऐसा नहीं है कि उपकेतु के साथ में दूसरा भी एक्टिव है. एक टाइम पर एक एक्टिव होता है. लेकिन ये जो हमने बात करी थी वो ग्रहों की करी थी, उपग्रहों की नहीं करी थी. ग्रह एक समय पर एक एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनको फिजिकली एग्जिस्ट करना होता है. उपग्रह एक ही समय पर सभी एक्टिव हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इस कमरे की लाइट बंद कर दूं तो विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये कौन सी डार्कनेस है? विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज के विच डार्कनेस इज इट? ये कौन से कलर की डार्कनेस है? कोई कलर की डार्कनेस नहीं है. लेकिन अगर मैं यहाँ पीछे येलो कलर का बल्ब जगाऊं तो आप बता सको ये येलो बल्ब है. अगर मैं उसके साथ व्हाइट बल्ब जगाऊं आप कहोगे व्हाइट बल्ब है. मैं साथ ब्लू जगाऊं तो आप कहोगे ब्लू बल्ब है. यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज वन बल्ब एट वन टाइम. ठीक है. बट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज अ शेडो. सो शेडोज कैन एक्चुअली ब्लेंड इन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर एंड दैट इज देयर पावर. ठीक है. सो उपग्रह दे ऑल आर एक्टिव एट सेम टाइम. यू डोंट हैव टू कि भैया जी एक ही ग्रह एक समय पर एक एक्टिव होता है. ठीक है. हाँ जी रितु जी. सर ये पहले तो ये हम किसी सॉफ्टवेयर कौन से पे देखेंगे पराशराज इसको लाइट जो में सारा कुछ आता है.
हाँ जी। पराशराज लाइट पे आता है। और दूसरे पे जो अभी तो है ही नहीं हमारे पास फ्री पराशर, तो सॉफ्टवेयर उसमें में कुछ नहीं मिलेगा आपको। फ्री सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी अभी आपके लिए नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर तो छोड़ने पड़ेंगे। कहाँ से फिर मिलेगा, मतलब? मैं ऑनलाइन देख लो, कहीं परचेज कर लो, मैंने तो इतना याद नहीं कहाँ से मिलेगा। है एक, ओके। किसी का नंबर दे दूंगा आपको जो करते हैं, वो शिल हेल्प यू। बट ठीक है, ओके। पायरेटेड मत लेना, आई डोंट सपोर्ट पायरेसी। अगर आपको पायरेटेड ओके। लेना है वो आपकी मर्जी है, बट आई डोंट सपोर्ट पायरेसी एट ऑल। तो इफ़ यू रियली वांट टू, देन इन्वेस्ट इन इट एंड बाय अ गुड वन। ओके। ठीक और है। एक और सर, जैसे अभी आपने बताया कि ग्रहों के साथ, मतलब ये प्लैनेट्स के साथ है तभी ये हाउस को इफेक्ट करते हैं, हाउस राशि को को भी इफेक्ट करेंगे, करेंगे? राशि को भी करेंगे, और जो प्लैनेट साथ में बैठे उसको उसको भी भी करेंगे, करेंगे? इनफैक्ट और नक्षत्र अगर को भी कोई करेंगे। जिस नक्षत्र में और, उपकेतु चला गया वो आपके ओल्ड वुंड्स का कारण है नक्षत्र। फॉर एग्जाम्पल अश्लेषा में उपकेतु चला गया तो आपको सांप ने काटा था, तुम स्नेक ओके। पॉइजन से मरे थे, तुम्हारी स्नेक पॉइजन के कारण फियर आ गया तुम्हारे जीवन में। ठीक है, ओके। भरनी में आ गया तो हाथी के साथ पुराने कर्म पड़ गए आपके। यू माइट हैव फेस्ड एन एलिफेंट इन योर सम लाइफ। हम सब थे तो आदिवासी ही, जानवरों के साथ ही रहते थे, ओके। ओके। राइट? तो और हम्म, जब कोई डेबिलिएट हो गया साइन, अगर कोई प्लैनेट वहां बैठा है और पहली उसके बात, साथ, ये कभी डेबिलिटेटेड एक्सॉल्टेड नहीं होते, इनकी नहीं कोई। अगर कोई और प्लैनेट है, तो जैसे उसके कोई रिजल्ट मरकरी हो, कम कोई कर देगा, उसके वीनस हो, रिजल्ट अब उसी उस अकॉर्डिंग आएगा। हाँ उसका अकॉर्डिंग हाँ, आएगा अभी ना आगे उसके। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आगे आ रहे हैं वहां पे। ओके। ओके, ठीक ठीक है, है। हाँ जी थैंक अरविंद। यू। और सर लाइक पायरेटेड वैसे मिलते नहीं हम सॉफ्टवेयर, मैंने देखा था काफी टाइम पहले, पता नहीं यार, एंड लोग वो ले लेते हैं, दस बट पंद्रह हजार से स्टार्ट हो रहे थे, सो दैट्स इट। बढ़िया जी। ठीक है, अब हम चलते हैं सैटर्न के 5 शेडोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर एक्चुअली 6, दे आर एक्चुअली 6। यहां पे मैंने गुलिका और मांदी को एक लिया है क्योंकि ये आज की डेट में एक माना जाता है। आज की डेट में कहते हैं कि स्काई की जो एक्सपेंशन है वो कलयुग में उस तरह से हुई है कि गुलिका और मांदी एक है, लेकिन एक्चुअल में गुलिका और मांदी एक नहीं है। मैं पर्सनली इन्हें अलग अलग लेता हूं, और आपको यूजुअली ये एक घर मांदी से आगे पीछे या 2 घर मांदी से आगे पीछे मिल जाएंगे। तो गुलिका मांदी के आसपास रहती है। और मांदी क्या है? मांदी शनि का पुत्र है, और शनि का पुत्र शनि से भी ज्यादा डेंजरस है। शनि का पुत्र शनि से भी डेंजरस है। अब इससे हमको सीखने को क्या मिलता है? दैट 5th हाउस ऑफ फ्रॉम सैटर्न इज मोर डेंजरस देन द हाउस वेयर सैटर्न इज प्लेस्ड। क्या सीखने को मिलता है? शास्त्र कहता है 5th, बेसिकली चाइल्ड ऑफ सैटर्न, हैज टू बी फियर्ड मोर देन सैटर्न हिमसेल्फ। आपको शनि से ज्यादा किससे डरने की जरूरत है? शनि के पुत्र से डरने की जरूरत है। तो शनि का पुत्र कहां से देखेंगे? शनि के 5th हाउस से देखेंगे। So 5th from Saturn is in fact more dangerous, more problematic house than where the Saturn is sitting. You all can verify in your own charts. There will be trouble 5th from Saturn. उसके बाद बोला जाता है शनि इतना बुरा नहीं जितनी शनि की दृष्टि बुरी है। शनि इतना बुरा नहीं जितना शनि की दृष्टि बुरी है। और जब आप शनि के टेंपल जाते हो तो आप उनकी आंखों में नहीं देखते। यानी कि जब आपको कुछ भी पाना है तो शनि से अगला और पिछला घर छोड़ना पड़ेगा। जहां भी शनि है उसकी आंखें छोड़नी पड़ेंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न इज इन द 10th हाउस, आपको दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको ग्रोथ पानी है 10th हाउस की, आपको 9th हाउस छोड़ना पड़ेगा। आपको धर्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और कर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। शनि कर्म करता है, धर्म नहीं करता। दीज आर वेरी डीप एंड इजी सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो आपको पता होने चाहिए। शनि से अगला पिछला घर तुम्हें त्यागना पड़ेगा यदि तुम्हें शनि के रिजल्ट लेने हैं। ठीक है, शनि 7th हाउस में आ गया। अगर शादी में हैप्पीनेस चाहिए तो अपना रूटीन त्यागना पड़ेगा।
और इन लॉज के साथ झगड़े या इन लॉज को भी त्यागना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जब सैटर्न 7th में आए तो भैया अकेले रहो, डोंट लिव विद इन लॉज, इट्स बेटर टू हैव योर ओन सेपरेट न्यूक्लियर फैमिली। इफ यू विल लिव विद इन लॉज यू विल हैव ट्रबल्स। समझे नहीं समझे? तो शनि से अगला पिछला घर तुम्हें लाइफ में त्यागना है, और शनि से 5th हाउस में आपको हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। 10th का एग्जांपल ले लो, 10th से शनि 2nd हाउस को देखेगा, 5th 2nd हाउस आएगा, तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई बहुत बड़ी ट्रबल आई होगी। हाँ जी इंदु जी। ये सैटर्न से 5th हाउस में देखना है, मतलब गुलिका और मांदी का इफेक्ट रहता है। मैं अब बात मैं की नहीं तो समझ पाई सर। कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देखना, अब मैं दोबारा सर, नहीं एक एक्सप्लेन लाइन। कर पाऊंगा वो। बाकी सबको समझ आ गया ना? मैंने ये जी समझा सर। कि 5th हाउस फ्रॉम सैटर्न इज अ प्रॉब्लमेटिक हाउस, बस इतना याद रखना है। ओहो, यस यस। सो अगर उसी 5th हाउस में गुलिका और मांदी भी प्लेस वो हो जाए अलग तो बात फिर? है, अच्छा। अभी वहां तो आए ही नहीं हम। ठीक है, सो इन सब में ये 5 कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला है गुलिका, दूसरी है मांदी, तीसरा है यमकंटका, उसके बाद है काला, उसके बाद है मृत्यु, उसके बाद है अर्धप्रहारा। अर्धप्रहारा का बड़ा डीप कहानी है, मैं आज शायद ना सुना पाऊँ वक्त के कंस्ट्रेंट के कारण। काल के बारे में हम थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। काल इज महाकाल हिमसेल्फ। ठीक है, चलो आते हैं जी मांदी पे। कौन है जी मांदी? गुलिका या मांदी, अभी आप इसको सेम ही समझो, मैं बाद में लास्ट पे आपको थोड़े से डिफरेंसेस समझा दूंगा। दिस इज सन ऑफ सैटर्न, शनि के पुत्र हैं ये। शनि की मोस्ट मेलेफिक और पॉइजनस एसेंस से पैदा हुए थे। तो जितना पॉइजन सैटर्न में है उससे भी ज्यादा पॉइजन कहां पे है? गुलिका में है। इफ सैटर्न कॉजेज डिलेज, गुलिका डिस्ट्रॉयज इट। शनि तो डिले ही कॉज करता है ना, लेकिन गुलिका उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्चुअली मांदी उसको डिस्ट्रॉय करता है, गुलिका नहीं। ठीक है, मांदी समझो आप यहां पे, मांदी डिस्ट्रॉयज इट। तो मांदी डिस्ट्रक्टिव है, लगन में आएगा तो हेल्थ को खराब कर देगा, लगन में आएगा तो तुम्हारे ही राजयोग तुम्हारे लिए ऑपोजिट टर्न होने शुरू हो जाएंगे। जितने ज्यादा राजयोग और मांदी लगन में उतनी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग है तो मांदी लगन में आपको जज बना देगा। सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे हैड मांदी इन लगना। बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स दे हैव मांदी इन लगना, बट दे डिडंट लिव्ड देयर लाइफ, देयर लाइफ वॉज डिस्ट्रॉयड। बड़े बड़े पॉलिटिशियन मांदीन लगना, बड़े बड़े राजयोग लेके बैठे, लेकिन वो राजयोग ही उनकी डिस्ट्रक्शन का कारण बने। वो अपनी लाइफ में एक्सप्रेसिव नहीं हो पाए, वो लाइफ जी नहीं पाए। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सुबह से लेकर रात तक सर्विस में फंसे रहे, अपने बच्चों के साथ भी नहीं टाइम स्पेंड कर पाए, और इवन बच्चों की लाइफ भी कंस्ट्रेंड रही। अब हमारा एक दोस्त है, वो कहीं जा ही नहीं सकते, वो ब्यूरोक्रेट का बेटा है, ही डजंट गो एनीवेयर, ही कैन नॉट, उनको प्रॉब्लम है। तो मांदी लगना इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एंड बेस्ट पोजीशन इफ यू वांट सिंफुल लाइफ। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे, कैसे कर्म करके बनोगे? बड़े बड़े पॉलिटिशियन बनोगे, कैसे कर्म करके बनोगे? तो कर्म तो तुम्हें सिंफुल करने पड़ेंगे, तो फिर आपके लिए अच्छा है। हाँ, आपको नहीं करने हैं फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। अब ये दिखाती क्या है बेसिकली? मांदी क्या क्या दिखाता है? मांदी डिजीजेस, स्वेयर डिजीजेस। So Mandi in 6th will give you very bad diseases. Mandi with Ganati Karka will give you worse diseases. ये poisons, toxins, sudden downfall, accident, criminal tendency, ठीक है, ये सब basic. Low moral choices, see? You'll have to choose between right and wrong and you'll say wrong है, इतना भी wrong नहीं है, बुरा तो है पर इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, सो ये जो आपकी इतना उतना की डेफिनेशंस हैं वो सब मांदी शो करता है। मांदी इंपॉर्टेंट क्या है? देखो जी, लगना लॉर्ड और लगना, लाइफ इज वेरी हार्ड।
If it is in Lagna or with Lagna Lord, it is problematic. If Mandi is with Chandra, mental darkness, depression. Okay? अगर 8th और 12th को देखेगी तो ये बंदा आइसोलेशन में रह जाता है, सफरिंग्स और डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस. नाउ व्हाट इज डेथ लाइक एक्सपीरियंस? डेथ लाइक एक्सपीरियंस इज इन मेडिटेशन. You die in meditation. The art of dying while you are living is meditation. The art of dying while you are living is meditation. That is what Mandi can actually give you if it is in 8th or 12th. ठीक है? गुलिका भी सेम है. तो बेस्ट पोजीशन एक्चुअल में गुलिका की 12th हाउस है. क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान दुनियावी चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है. सफरिंग्स तो आती हैं, आइसोलेशन भी आती है, लोनलीनेस भी आती है, लेकिन किस कॉज के लिए आ रही है? दैट कॉज इज अ हायर कॉज, हायर स्पिरिचुअल कॉज. सो 8th and 12th इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मांदी. आई विल से ओनली 12, 8 नहीं. ठीक है? गुलिका विल एक्ट इवन इफ नो प्लैनेट इज देयर. ठीक है? इट इज मोर क्रूशियल, मोर क्रूअल देन सैटर्न इटसेल्फ. अब मैं गुलिका और मांदी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूं. अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा वो मांदी के बारे में था, सिवाय ये जो 12th वाली मैंने बात की, गुलिका इन 12th इज गुड. गुलिका है, गुल्लक देखिए सबने. गुल्लक, गुल्लक क्या होती है? गुल्लक जिसमें आप चीजें स्टोर करके रखते हो, पैसे स्टोर करके रखते हो, है ना? मांदी की गुल्लक को गुलिका बोला गया है. यानी कि मांदी के जो नेगेटिव कार्माज मैनिफेस्ट होंगे वो उस गुल्लक के थ्रू होंगे. मांदी उस गुल्लक को खर्चेगा और रिजल्ट देगा. इजी रेमेडी है, आपको मांदी का उपाय नहीं करना, आपको गुलिका डिस्ट्रॉय करनी है. यदि आप मांदी की गुल्लक को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मांदी के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. ठीक है? तो आपके जो पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास हैं वो सब एक जगह पर पड़े हैं, वो गुल्लक है आपकी. जहां भी पड़ी है उस गुल्लक को डिस्ट्रॉय करना है. अब गुल्लक कैसे डिस्ट्रॉय होगी? बाय एक्टिवेटिंग द 12th हाउस फ्रॉम गुलिका. बाय एक्टिवेटिंग 12th हाउस फ्रॉम गुलिका. लेट सपोज इफ गुलिका इज इन द 12th हाउस, यू हैव टू एक्टिवेट 11th हाउस. स्टार्ट अर्निंग, पैसा कमाओ, सब छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ. अर्न मनी, वो आपके काम आएगी. अर्न फ्रेंड्स, 11th हाउस, क्लोज रिलेशंस, फ्रेंड्स, नेटवर्क, सर्कल क्रिएटेड. ठीक है? 7th हाउस में गुलिका है तो उससे 6th हाउस को एक्टिवेट कर लो. हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन. ओके? यू विल डिस्ट्रॉय द गुलिका. व्हेन यू विल डिस्ट्रॉय द गुलिका, मांदी विल एक्ट जीरो नेगेटिव एनर्जी के साथ. उसके पास एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी गुल्लक में है. वो कहानी सुनिए ना, वो एक जादूगर था, उसकी ताकत तोते में थी. सुनिए सबने कहानी कि नहीं सुनी? तो एक कहानी है, छोटे होते सबने सुनी होगी, कि एक जादूगर था और उसकी जो सारी पावर है वो एक पैरेट में थी. तो वो जादूगर तो मारते रह रहे थे, लेकिन जादूगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. तो फिर किसी ने बताया, अरे तुम गलत इंसान को मार रहे हो, तुम्हें इसको नहीं मारना है, तुम्हें उस पैरेट को मारना है. तो फिर उन्होंने पैरेट को मारा और जादूगर मर गया. यही मांदी और गुलिका का रिलेशन है. तुम्हें मांदी को नहीं मारना, तुम्हें पैरेट को मारना है, गुलिका को पकड़ना है. ठीक है? चलो, नेक्स्ट इज यमनकंतका. यमकंतका इज एक्चुअली गॉड ऑफ डेथ. ही इज एजेंट ऑफ यमा. मृत्यु तुम तक कब और कैसे आएगी ये ग्रह से देखा जाता है. मृत्यु तुम तक कब और कैसे आएगी. इससे ज्यादा हम डेथ के ऊपर बात नहीं करेंगे, बट यस, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी. अब अगर ये नेगेटिव है, अगर ये आत्मकारक के साथ है, अगर ये लग्ना लॉर्ड के साथ है, लग्ना लॉर्ड और 8th लॉर्ड इकट्ठे, या 8th लॉर्ड और यमकंतका आपके लग्ना को देख रहा है या आपके सूर्य या चंद्र को देख रहा है, तो अनटाइमली डेथ हो सकती है. ठीक है? एजेंट जो है वो अनटाइमली आपके पास आ सकता है. लीगल पनिशमेंट भी यहीं से देखते हैं. किसी को सजा हो गई, हैंग बाय द नेक टिल डेथ. अब हैंग बाय द नेक टिल डेथ, मृत्यु सजा कैसे मिलेगी? कैन यू सी इट इन अ चार्ट?
नहीं देख सकते, यहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, आई विल नॉट शेयर मच अबाउट दिस, बट ये मैंने जो अभी बोला था मैंने वही बोल दिया। 8th लॉर्ड और लगना डेंजर टू लॉन्जिविटी। मार्स के साथ है तो वॉयलेंट डेथ, लड़ते लड़ते मृत्यु। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ, वॉयलेंट। सैटर्न के साथ है तो स्लो पेनफुल एंडिंग, लोग तरसते हैं मृत्यु आ जाए, लेकिन मृत्यु नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज काला। काला इज टाइम इटसेल्फ। The only planet, the only Upagraha, if this is in your favor, you don't need all 9 planets. Leave all 9 planets at one side and have Kala at one side. This is the aspect of Mahakal. ये महाकाल का एस्पेक्ट है, दृष्टि है उनकी खुद की। तुम्हारे चार्ट में कहां पड़ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इररिवर्सिबल चेंजेस लेके आती है। टाइम that changes. Best position is 10th house. Why 10th house is best position? आप कहीं बेसिक से घर में पैदा हुए, बेसिक सा जन्म हुआ, बेसिक सा सब कुछ हुआ, क्योंकि काल 10वें में था तो आपका सारा करियर रीशेप हो गया। आप एक बड़ी छोटी सी फैमिली से आते थे और आज आप एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हो, बहुत बड़े मिलियनियर हो, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो। क्यों हो? काल इन 10th हाउस। 10th हाउस में काल इज बेस्ट प्लेसमेंट, वर्स प्लेसमेंट इज इन लगन। जब लगन में काल आ जाता है तो तुम वक्त के साथ नहीं चल पाते। ठीक है, काल इज ऑल्सो शोइंग द टाइमिंग ऑफ डेथ। जब भी हमें टाइम ऑफ डेथ देखना है तो काल को साथ में देखना है। फेट टर्निंग पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड कोलैप्स ऑफ प्लान्स। कोलैप्स ऑफ प्लान्स क्या होता है? मेरा प्लान था, मैं किसी मतलब मेरा नहीं था, किसी एबीसी पर्सन का, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि हम ठीक है 20-21 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी, 23-24 में शादी हो जाएगी, 27-28 में बच्चे हो जाएंगे और बढ़िया उसके बाद लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन वो प्लान कोलैप्स हो गया। कैसे कोलैप्स हो गया? यू हैव टू सी बाय काल। काल वॉज इन 11th हाउस, योर विशेज विल कोलैप्स। तो तुम उल्टी विशेष करो, तुम कहो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, एंड द कोलैप्स ऑफ प्लान विल हैपन। नहीं होगे, उल्टा कर देगा काल। ठीक है, सो काल विल एक्चुअली रिवर्स, ही विल फेट को टर्न करना काल है। काल अगर लगन लॉर्ड के साथ है तो लाइफ इज डिफाइंड बाय फेट। अब ये देखा, काल इन 10th, करियर कोलैप्स और इररिवर्सिबल राइज और फॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज मृत्यु। हु इज मृत्यु? मृत्यु क्या है? सबको एक दिन जाना है, दैट इज मृत्यु। हम अष्टम भाव से देखते हैं यूजली, बट ट्रू डेथ इज नॉट 8th हाउस, द ट्रू डेथ इज 7th हाउस। यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड ब्रेन डेथ? Research about it and you will get to know the difference between Saturn and मृत्यु। ठीक है, ये फियर ऑफ डेथ फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस में है तो ऐसा इंसान कहेगा मुझे बीमारी से नहीं जाना है, मुझे बीमार होके नहीं जाना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 12th हाउस में है तो कहेगा मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। ठीक है, मुझे जेल में नहीं जाना है, जहां मेरे को कंस्ट्रेन किया जाए मुझे वहां नहीं जाना है। सो दिस इज मृत्यु। नॉट रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, विल नॉट डिस्कस दैट इन डिटेल, बट हां, जब मृत्यु चंद्र को इफेक्ट कर दे तो ऐसा इंसान फियर, एग्जाइट और डेथ फोबिया में जीता है, अपनी या किसी और की। कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं कुछ बदल ना जाए। तो ये जब मृत्यु चंद्र को इफेक्ट करती है या लगन को इफेक्ट करती है या आत्म कारक को इफेक्ट करती है। जब मृत्यु अष्टम को इफेक्ट करती है तब एक्चुअल डेंजर टू लॉन्जिविटी आता है कि हां देयर इज एक्चुअल प्रॉब्लम इन लॉन्जिविटी, वी हैव टू क्योर समथिंग। बट हियर इफ द लग्न लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग देन यू डोंट हैव टू वरी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज हाफ वॉच ऑफ यमा। अर्ध, अर्ध इज हाफ,
प्रहारा इज हिज फोर्स। तो ये लोग जो नियर लाइफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि बस अभी मरने वाला था और अभी बच गया, मरते मरते बचा। कितनी बारी आप लोगों ने शब्द हमारे इंडिया में तो यूज होता है, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया मरते मरते बचा। वो कैसे मरते मरते बचा है? वो अर्ध प्रहार है। और अर्ध प्रहार आपके लाइफ में किसी भी चीज में हो सकता है। अगर 10th हाउस में है तो आप अपने करियर में कोलैप्स करते करते बचोगे। 4th हाउस में है तो कार एक्सीडेंट होते होते बचेगा। 6th हाउस में है तो बीमारी होते होते बचेगी। 7th हाउस में है तो रॉन्ग पार्टनर मिलते मिलते बचेगा। 5th हाउस में है प्रेगनेंसी होते होते बचेगी। 3rd हाउस में है आप एफर्ट करते करते छोड़ दोगे। तो दिस इज एक्चुअली सेविंग फोर्स जो आपको बचाती है डेथ से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। जो भी नेगेटिव चीज होने वाली होती है आप उससे पीछे हट जाते हो राइट टाइम पर। ये अर्ध प्रहार है। लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए तो आप इनकम्प्लीट एंडिंग्स की तरफ चले जाओगे। 10th हाउस में तो आप काम करते करते कहोगे मेरे को नहीं करना। 2nd हाउस में तो पैसा कमाते कमाते कहोगे मेरे को नहीं कमाना। 3rd हाउस में तो मेहनत करते करते कहोगे मेरे को नहीं करनी। ठीक है, तो वो इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। गुलिका की ओवरऑल पावर क्या है जी? ये हम श्लोक आप बाद में पढ़ लेना, मैं नोट शेयर कर दूंगा। Auspicious results should not be predicted even when joined by benefic planets. गुलिका जिस घर को भी टच कर देती है वहां से auspicious रिजल्ट मत देखना, चाहे उसके साथ बेनिफिक प्लैनेट ही क्यों ना बैठे हों। द ट्रू हैप्पीनेस विल नॉट अराइज। जैसे मैंने 12th हाउस का एग्जांपल दिया, आइसोलेशन, मेडिटेशन एंड ऑल, वहां से ट्रू हैप्पीनेस नहीं आएगी। ठीक है ना? लेकिन स्टिल वो बेनिफिक होगी आपके लिए। गुलिका इन लग्ना मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। इफ गुलिका इज ऑक्यूपाइड बाय लग्ना सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। उपग्रह एंड मिसफॉर्च्यून। द हाउस ऑक्यूपाइड बाय उपग्रह, कंटिन्यूअस डिस्ट्रेस, सडन फियर, ग्रीफ, स्वेयर, सफरिंग्स। यमक्रता एंड ये मैंने पढ़ाने नहीं थे, चलो कोई नहीं, पढ़ लो। मैंने अपने वाले नोट सारे एज इट इज ही दे दिए। चलो ठीक है, अगर यमकृत जो है वो 8th लॉर्ड के साथ चला जाए तो अनटाइमली और फ्राइटनिंग डेथ होती है। ठीक है, खतरनाक मृत्यु कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ती है जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धूमा एंड मेंटल डार्कनेस मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, जब धूमा चंद्र के साथ कनेक्ट हो तो अच्छा नहीं है। और पराशर ने कुछ जनरल वार्निंग दी है। विदाउट कंसिडरेशन ऑफ उपग्रहस, accurate judgment of results should never be made. अब जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है आपके पैसे आज ही पूरे हो गए हैं, क्योंकि अब आप एक्यूरेट जजमेंट तक पहुंच पाओगे विदाउट कंसीडरिंग उपग्रह। बिना उपग्रहों के ग्रहों की प्रिडिक्शन करनी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जिनको उपग्रह नहीं पता, उनको लाख ग्रह पता हो, वो एक्यूरेट रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु बहुत अच्छा बैठा है जी। गुरु इज इन 10th हाउस, एक्सपेक्टिंग 2nd हाउस, अ लॉट ऑफ वेल्थ, बट इन 2nd हाउस देयर इज मांदी। इन हियर इट्स चंद्रा और चंद्र के साथ धूमा। पैसा होएगा ही नहीं, पैसा कंगाली में जिएगा आदमी। कहने को देखने को पैसा होगा लेकिन पैसा नहीं होगा। सो वॉच दिस लेसन एटलीस्ट 10 टाइम्स। ठीक है, और जिनके पास सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं हैं, इसको कैलकुलेट करना सीखना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा मैं ग्रुप में कुछ मैथमेटिकल सिचुएशंस आपको समझा दूं, अगर आपको समझ में आएंगी कि इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, उसको सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। बट फॉर दिस कोर्स स्टे मोर एक्टिव इन ग्रुप। हम ग्रुप डिस्कशंस भी करते रहेंगे। ठीक है, क्लासें चाहे हफ्ते में 1-2 ही होंगी, लेकिन ग्रुप डिस्कशंस होती रहेंगी। ठीक है, हाँ जी इंदु जी। ये चार्ट में सारे 10 तो नहीं रहते हैं हमेशा, क्यों नहीं नहीं रहते? दिखाते हैं, क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जो मेरे पास है उसमें 7 है। ये सिर्फ गुल्लिका मांदी तक ही है और ये उसने कैलकुलेट नहीं किया बाकी होगा, वाले नहीं। उसने नहीं किया होगा कैलकुलेट। अच्छा, उसमें कैलकुलेट नहीं किया होगा, लेकिन एवरीथिंग विल बी, ऑल 10 विल बी पॉसिबली प्रेजेंट। दे विल बी देयर। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कोई सवाल जवाब, कुछ कंफ्यूजन, यू कैन आस्क, गो अहेड। पता था किसी को इतने डिटेल में उपग्रह है? लेकिन ये पता था उपग्रह नहीं होते सर। हैं?
मितेश जी ने बताया था ना उपग्रह का नाम, आपने बताया था ना ग्रुप में, मैंने जब पूछे थे। चलो दैट इज गुड। सो दिस इज अबाउट उपग्रह। हाँ जी काजोल जी। सर आपने बोला प्लैनेट्स एक बार में एक्टिव होते हैं, तो ये सारे के सारे कैसे एक्टिव हो सकते हैं? ये सारे एक्टिव हो सकते हैं। आप एक ही टाइम पे डिप्रेशन में भी हो सकते हो, और डिप्रेशन में होते हुए भी मृत्यु हो सकती है। आप कोई काम आधा छोड़कर जाते हो। अब देखो ये क्या है, मैंने अभी एक लास्ट में एक चीज पढ़ाई। लास्ट उपग्रह का नाम क्या था जी? अर्ध प्रहार। अर्ध प्रहार। तुम अपने सारे जीवन में अर्ध प्रहार में ही जीते हो। व्हाट इज प्रहार? किसी चीज का प्रहार करना। प्रहार करना मतलब वार से शब्द निकला है प्रहार। वार से शब्द निकला है प्रहार। वार होता है किसी चीज को डिस्ट्रक्टिवली करना, और प्रहार होता है किसी चीज को यूजली कैजुअली करना। समझ में आ रहा ना? ठीक है ना? ये एक ही हाउस में रहेंगे और उसी हाउस की ही हमको वो देंगे, ये मतलब ट्रांजिट भी देखोगे इनका, है ना? हाँ इनका Okay. ट्रांजिट भी देखोगे। आपके अब अर्ध प्रहार का क्या मतलब है? आप हमेशा जीवन में हर काम आपका आधा ही होता है। ठीक है, आप लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं होते, चाहे कितने भी कह लो कि मैंने आज मैं कंप्लीट हूं। जिस दिन आप कंप्लीट हो आप एक्चुअल में मर जाओगे, अगर आप कह दो आप कंप्लीट हो। अनफॉर्चुनेटली हम जिस दिन मरते हैं तब भी हमारा कोई काम इनकम्प्लीट ही होता है। ठीक है ना? हम सोच के बैठे होते हैं कल ना हमने ये करना है, और कल कभी आता ही नहीं। तो फिर लोग बात करते हैं यार अभी कल तो बात कर रहे थे कि कल ये करने जाना है, यहाँ जाना है, ये खाना है, वो घूमना है। सो अर्ध दे आर ऑलवेज एक्टिव। आप हमेशा जीवन में आधा काम रखते हो और आधा कल पर छोड़ते हो, और वो जो आधा आपने कल पे छोड़ा वो हमेशा एक्टिव रहता है। मैं सभी का एग्जांपल दे देता हूं। मृत्यु हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है, हमेशा। कभी भी मृत्यु एक क्षण के लिए भी तुमसे दूर नहीं होती। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, तुमसे दूर है, नहीं है। डेथ फोर्स इज ऑलवेज देयर। every day thousands of cells are dying in your body, right? What is happening? They are dying. So मृत्यु हर क्षण घटित हो रही है, तुम हर क्षण मर रहे हो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज द कॉज ऑफ डेथ, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेती है और वो शरीर को बूढ़ा करती है। ठीक है, नेक्स्ट काल, टाइम। यू आर ऑलवेज लिविंग इन सम टाइम। अभी कुछ टाइम हुआ है, एक क्षण बाद कुछ और टाइम होगा, पिछले क्षण में कुछ और टाइम था। सो टाइम इज ऑलवेज प्रेजेंट, यू कैनॉट एस्केप टाइम। नेक्स्ट, हाँ जी, एजेंट ऑफ यमा अगेन। एवरी टाइम देयर इज समथिंग दैट इज ईदर स्टॉपिंग यू टू डेथ, टू डाई, और मेकिंग यू कॉज टू डाई। आप गाड़ी 70 पे चला रहे हो, एकदम से आपके दिमाग में आता है यार मैं ना 150 करके देखूं। आप करके देखते हो, और एजेंट ऑफ यम उस समय डिसाइड करते हैं कि इसको मृत्यु देनी है कि रोकना है। ठीक है, मांदी इज ऑलवेज एक्टिव। यू आर ऑलवेज हैविंग सम काइंड ऑफ पॉइजनस एसेंस अराउंड यू। हमेशा कोई ना कोई पॉइजन लाइफ में बना रहता है। ठीक है ना? पॉइजन हर किसी के जीवन में है, जस्ट मेक श्योर इट इज वर्थ इट, और गले तक रहे तो अच्छा है। भगवान शिव ने गले तक पॉइजन को रोक लिया था, उसके पीछे वजह है कि गले तक पॉइजन अच्छा है। पॉइजन भी जरूरी है तुम्हारे लाइफ में। विदाउट पॉइजन यू कैन नॉट लिव अ फुल फ्लेज लाइफ। ठीक है, बाकी के भी देख लो, सूर्य के भी देख लेते हैं। उपकेतु, विदाउट पास्ट लाइफ, whenever you are here your past life scars are working with it। ठीक है ना? इंटरनली हमेशा आपके सोल आपके साथ है, उसके इम्प्रिंट आपके साथ है। टेम्परेरी रिलीफ, आपको हमेशा किसी ना किसी चीज से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, किसी भी चीज से हो, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ सब लेते हैं, सब एस्केपिज्म में जीते हैं। हाँ जी परिवेशा, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ फेक है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ फेक है। कह दो नहीं है, कोई नहीं कह सकता नहीं है। ठीक है, हाँ जी, सडन डिजास्टर्स, सडन अप्स एंड फॉल्स कभी भी आ सकते हैं। कहते हैं टाइम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो एंड द लास्ट इज धूमा, देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन, ऑलवेज मेंटल फॉग, यू कैन नॉट बी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। आप कभी भी हर चीज के लेके क्लियर नहीं होते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अबाउट प्लैनेट्स, आप हमेशा गुस्से में नहीं रह सकते, आप हमेशा प्यार से नहीं रह सकते, आप हमेशा एक अलग तरह की रेपुटेशन में नहीं रह सकते। जस्ट गिविंग यू फॉर एग्जाम्पल, है ना? हमेशा मार्स की एनर्जी हमेशा नहीं रहती आप में, और उम्र भी है, हर चीज उम्र है। अब शुक्र की एनर्जी एक उम्र तक ही होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है।
चंद्र की एनर्जी एक उम्र तक होती है, फिर खत्म हो जाती है, लेकिन उपग्रहों की एनर्जी सारी लाइफ चलती है, कभी खत्म नहीं होती। तो जैसे अगर आपने बोला था कि अगर सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा है हम्म, तो ये अपने यही ग्रह से करेगा, तो वो 5 के 5 हाँ एक्टिव रखेगा अपने, हाँ या हाँ, किसी पर्टिकुलर एक चीज से? मैंने ये नहीं कहा कि सैटर्न इनका यूज करके आपको तंग करेगा। सैटर्न के पास अपनी इंडिविजुअलिटी है आपको तंग करने की। सैटर्न अपने से 5th हाउस में आपको तंग करेगा। सॉरी, सैटर्न अपने से अगला और पिछला घर आपसे छुड़वाएगा। ये अपने आप में इंडिविजुअल हैं, इनका कोई डायरेक्ट सैटर्न से लेना देना नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सन को तंग करना है तो वो धूमा को, व्यतिपता को यूज करेगा, नहीं करेगा। वो सन अपने आप में कंप्लीट है, सैटर्न अपने आप में कंप्लीट है, इसी तरह ये अपने आप में कंप्लीट है। गॉट इट? चलो, हाँ जी अरुण जी। राणा साहब सवाल पूछो। सर सर अगर किसी का काला उसके जन्म नक्षत्र में ही हो, सो फिर क्या होगा सर? जन्म नक्षत्र में काल है मतलब कि उसके चंद्र के साथ एफ्लिक्टेड है, ठीक है? तो अब दिमाग में मृत्यु और मृत्यु के ख्याल चलते रहेंगे, ठीक है? दिमाग में टाइम को चेंज करने के, ये टाइम भी बदल देना है मैंने ये भी चेंज कर देना है, ऐसे की चीजें दिमाग में चलती रहेंगी। You'll keep thinking to reverse the times. You'll keep thinking to reverse the fate. Got it? सर होगा क्या नहीं, एंड दैट्स द थिंग होगा कि आल्सो। नहीं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी अभी हम उसके बाद पढ़ेंगे। पहले सिर्फ ये समझो है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ओके सर, हाँ ठीक है समझ ना? रहा हूँ मैं क्या कह रहे हो आप। गॉट इट, थैंक यू। हाँ जी ऋतु जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ऋतु जी हैंड सो भी रेज जैसे किया कि था तो इतने मतलब जो सन और सैटर्न के ये साथ कनेक्टेड है, तो उपग्रह कहीं किसी और के भी होते हैं और प्लैनेट्स के भी होते हैं, सिर्फ दो ही इन्हीं दोनों के होते दो हैं? ही। बट ये आपने कहा कि ये अलग अलग परेशान करते हैं और पूरे कुंडली में ये होते हैं, राइट? तो ये हमें अगर किसी में प्लैनेट ही ना हो, किसी ओनली राशि है, तो वो फिर राशि किस मतलब हाउस है ना, हाउस, हाँ उस हाउस हाउस को को तंग तंग करेंगे, करेंगे। बिल्कुल। तो ये दोनों इकट्ठे मिलके तंग करेंगे, जैसे शनि आपने बताया कि आगे पीछे और अपने से 5th को। शनि का तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टिप दी थी एडवांस समझाने के लिए, कुछ के हम्म मतलब क्या है उसका, वो एक अलग मैंने हम्म, एक्स्ट्रा टिप दी आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और ये टॉपिक अलग से चल रहा है, ओके या ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक्स डिफरेंट हैं। सो आई होप कि आपको मज़ा आया, आई होप कुछ सो नया बहुत सीखने को मिला, समय डिफरेंट, वेरी ठीक डिफरेंट। है? अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और करेंगे, वी माइट डिस्कस सम important factors about marriage, then we might discuss some important factors about multiple marriages, और ऐसे ऐसे की चीज़ें जो important हैं और लाइफ में काम आने वाली हैं। ट्विंस के चार्ट कैसे देखते हैं, ठीक है? बट सर important है। इसमें जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर कोई डेबिलिएटेड प्लैनेट है तो उसका इफेक्ट कैसे फिर आएगा, जैसे आपने प्लैनेट। एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड पढ़ लिए हैं, सर हाँ थोड़ा सा। वैसे ही आएगा, ओके। ठीक है? हाँ जी अरुण और जी। जो लगन के साथ हमारे फेवरेबल नहीं है और डेबिलिएटेड है, दे आर गिविंग अप फिर भी 5 to 10 पॉजिटिव। वो तो पॉजिटिव ही है ना, अगर वो डेबिलिटेटेड है, लगन के साथ कंपैटिबल नहीं, तो बहुत अच्छा है। मेरा शत्रु मेरे साथ उसमें पावरलेस है वो। और इनमें से अगर कोई भी उपग्रह आता है तो इट विल गिव अ पॉजिटिव और वो ये भी उसको, नेगेटिव। ये शेडो है, ये उसके उसके एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके ठीक है। ठीक है? हाँ जी अरुण जी। सर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना था इस बारे में, अगर आप अलाउ करो तो, लाइक हाँ जी, इफ यू अलाउ मी टू से समथिंग अबाउट इट, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। पढ़ाओ जी। सो मैंने तो सबको बता नहीं, आप सबको बात की ना, ये बहुत कम लोगों को पता है, लाइक बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, एंड मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं पढ़ पा रहा हूँ ये। और मैं जानता हूँ कुछ लोग कुछ करते हैं, पर जितना डिटेल में भाई जी ने बताया ना, लाइक नोबडी लाइक कोई नहीं बताता। हिंदी में ही बोल लूंगा मैं फिर से, पर बहुत बहुत थैंक यू भाई जी फिर से ना, ये एजुकेशन नहीं, मेरे को कई साल लग जाने थे इसको यहाँ तक पहुंचते हुए, लाइक जो आप इतना शॉर्ट कर रहे हो ना मेरा पीरियड, मुझे पता है मेरा बहुत टाइम बच रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।
तो इसको यूज़ करो और इसको बहुत सारे चार्ट्स पे लगा के देखो, ये पॉइंट्स को फाइंड आउट करो। प्रैक्टिस मोर टू गेट मोर एंड आस्क मोर टू गेट मोर। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा, आस्क मोर। द मोर यू विल आस्क द मोर यू विल गेट। मैं सबसे बुरा स्टूडेंट इसीलिए था कि मैं सबसे ज़्यादा सवाल पूछता था। मैं तो ये भी पूछता था धूमा का नाम धूमा क्यों है। ठीक है ना, मैं इतना वो पूछता धूमा ही क्यों है, नाम नाम भी कुछ और रख सकते थे, उन्होंने धूमा ही क्यों रखा, मृत्यु का नाम मृत्यु ही क्यों रखा। छोटे होते दिमाग में ऐसे सवाल आते थे, बच्चों के भी आते हैं ना, पंखे को पंखा क्यों बोलते हैं। आपके दिमाग में आया कभी कि नहीं पागल था। मतलब मेरे दिमाग में तो आता था पंखे को पंखा क्यों बोलते हैं, फ्रिज को फ्रिज क्यों बोलते हैं, बाल को बाल क्यों बोलते हैं। तो सवाल पूछो। सर इनके पीछे कुछ स्टोरीज तो होंगी, जैसे नक्षत्रास की है, इनकी भी हर कुछ बहुत है, स्टोरीज तो बहुत है, होंगी। बहुत कुछ है। धूमा की अपनी प्रेजेंस क्यों हुई, मैंने बोला ना, बॉर्न फ्रॉम सन राहु प्रिंसिपल। क्या कहानी थी, बड़ी लंबी कहानी थी धूमा की। ठीक है ना, आपने एक शब्द सुना होगा धूमकेतु। हम्म, धूमकेतु के बारे में पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। और धूमा के नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए देवी है धूमावती। ठीक है ना, सन राहु प्रिंसिपल का क्या मतलब है, राहु सूर्य को खा जाता है। देवी धूमावती ने क्या किया था, भगवान शिव को खा लिया था, उनको भूख लगी थी और उन्होंने या भगवान शिव को खा लिया था। और उसके बाद में वो विडो टेंशन में आ गई थी, विडो हो गई थी, अरे मेरा तो विडो पति या चला गया। हम्म, और इसका कौवे के साथ बड़ा गहरा संबंध है, तो जब शनि राहु का संबंध हो तो कौवे को खाना खिलाते हैं। जब सूर्य राहु का संबंध हो, जब सूर्य राहु का संबंध हो तो सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा कुछ है। अभी तो हमने सिर्फ ऊपर वाली टिप आइसबर्ग की टच की है। 10% हमने पढ़ा है, 90% इसके पीछे की गहराइयाँ पढ़ी हैं। तो वो आपको विद टाइम आ जाएंगी, खुद आ जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर है मेरे कराने से। हाँ जी अरुण जी, पूछना नहीं कुछ। हाँ सर जी, जो आपने मतलब जो आपने बात बोली ऐसे तो पर्सनल कंसल्टेशन क्लास में चल जाएगी, पर ठीक है सर, कंट्रोल करके ध्यान रखेंगे इस चीज का भी, बैलेंस आउट करने की ट्राई रहेगी। हाँ बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। हाँ जी इंदु जी, तो ये जितने भी ये 10th जितने उपग्रह हैं, ये क्या सिर्फ सफरिंग ही लेके आते हैं, लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया कि ये सिर्फ सफरिंग्स नहीं लाते। अब काल ऐसा 10th हाउस क्यों में है, मतलब? काल 10th हाउस में है तो आपका जीवन पलट सकता है। अब पीपल हु टुक बर्थ इन स्लम हाउसेज became bureaucrats, became business tycoons. How? Because of Kala in the 10th house. ठीक है, उनका वक्त विपरीत कर दिया गया, महाकाल की ब्लेसिंग्स हुई और वो बहुत अच्छा कर गए। ठीक है, धूमा इफ वेल प्लेस्ड, दीज आर मेंटल प्लेयर्स। ये बंदों का दिमाग इतना तेज होता है, मेंटल फॉग नाम की कोई चीज ही नहीं होती। धूमा इन 8th हाउस, उसका मतलब वही, फिर हम 8th हाउस और धूमा को लेकर के देखेंगे दोनों एट्थ को। हाउस में धूमा इज प्रॉब्लमेटिक। या मतलब वो एट्थ हाउस इल्यूजन में क्रिएट नो करेगा नो नो विद नो, लाइक इन एट्थ हाउस लॉज। इज हिडन कंफ्यूजन, हिडन या माइंड फोग, हिडन हाँ, एडिक्शन, हिडन एस्केपिज्म। ठीक है ना, हिडन है, किसी को पता ही नहीं है सिगरेट पीता है लेकिन पीता है। नहीं, धूमा इज ऑल्सो कंफ्यूजन एंड हाँ इल्यूजन भी बोल हाँ, सकते हैं ना। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सडन एडिक्शंस होती हैं ऐसे, लाइफ में एडिक्शंस हो जाती हैं जो छुपी रहेंगी, सप्रेस्ड रहेंगी एट्थ हाउस की वजह से। ठीक है, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों। तभी क्या, रिसर्च करो, फोकस ऑन मोर चार्ट्स, मल्टीपल चार्ट्स देखो। ठीक है, हाँ जी काजोल जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सर ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, पूछो। जो डेथ होती है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं इसलिए होती है या हाँ हाँ, पूछो पूछो, मेरे पास बड़े अच्छे जवाब हैं। तो क्यों, मतलब लाइक कोई रीजन है उसके पीछे या हमारा रोल कंप्लीट हो गया इसलिए लाइक वी डाई? मुझे कहा गया है कि मैं मृत्यु के संबंध में कुछ बोलूं, लेकिन मैं जीवन के संबंध में कुछ बोल सकता हूं, मृत्यु के संबंध में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं। जो चीज होती नहीं उसके संबंध में
हम कुछ नहीं बोल सकते। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मेरे गुरु के वर्ड्स हैं। और वो कहते हैं कि मुझे आज, उनके स्टार्टिंग यहाँ से होती है, कहते हैं मुझे आज यहाँ मृत्यु और जीवन के संबंध में कुछ बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन यदि बात जीवन की है तो मैं बात शुरू करूं, यदि बात मृत्यु की है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मृत्यु होती नहीं। यू नो व्हाट इज डेथ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ डेथ एग्जिस्ट्स और नॉट। ओके, मैं आपको, जीवन में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि इस कमरे में कहीं से थोड़ी सी डार्कनेस ले आओ, आप कैसे लाओगे? व्हाट विल यू डू? Switching of the lights. अंधेरा। लाइट ऑफ तुम करते हैं। अंधेरा कैसे लाओगे? तुम लाइट बंद कर दोगे। सो एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। डार्कनेस डजंट हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस। टू क्रिएट द डार्कनेस यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, एक केस है बड़ा जबरदस्त भगवान की फाइल में, आज भी कहते पेंडिंग पड़ा वो केस, कि भगवान के पास ना एक दिन अंधेरा गया और अंधेरे ने कहा कि मैं बड़ी परेशानी में रहता हूं, ये सूर्य जो है रोज सुबह आ जाता है, सूर्य रोज सुबह आता है और मैं भागता हूं, और अब तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि शाम को भी नींद नहीं आती, क्योंकि पूरी रात यही सोचता रहता हूं कि ये सुबह फिर आ जाएगा, और ये सुबह फिर आ जाता है। तो भगवान ने सूर्य को बुलाया और सूर्य को कहा कि तूने अंधेरे को क्यों परेशान कर रखा है? अंधेरा मेरी शरण में आया था, और जो मेरी शरण में आए मैं उसको परेशान होता नहीं देख सकता, तो तू एक काम कर, अंधेरे को तंग करना बंद कर दे। तो सूर्य ने कहा आप एक काम कीजिए, अंधेरे को मेरे सामने ले आइए, मैं अंधेरे को पहचान लूंगा, देख लूंगा, जान लूंगा, और आज के बाद उसको तंग नहीं करूंगा। और कहते हैं भगवान आज भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके अंधेरे को सूर्य के सामने लाने के लिए, और सूर्य के सामने अंधेरा नहीं आ सकता। अब इससे सीखने को क्या मिलता है? यदि तुम में जीवन है तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं आ सकती। इफ यू हैव द लाइट यू विल नॉट फेस द डार्कनेस, बट इफ यू डोंट हैव द लाइट ओनली देन इट विल लुक लाइक देयर इज डार्कनेस। सो मृत्यु असल में होती ही नहीं, मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है। इट्स जस्ट लाइक चेंज ऑफ क्लोथ्स विच आर वेरी नेसेसरी। आपके कमरे की पेंट खराब हो जाता है तो आप रीपेंट करा लेते हो, आप कहते हो ये पेंट अब इतना वर्थ इट नहीं है, चेंज करा लेते हैं। कभी कभी आप कलर भी चेंज कर लेते हो, आप पिंक की जगह वाइट करा लेते हो, वाइट की जगह येलो करा लेते हो, येलो की जगह ग्रीन करा लेते हो, कभी कभी टेक्सचर पेंट करा लेते हो, ट्रेंड नया चल पड़ा है। तो इसी तरह से हम सिर्फ कपड़े बदलते हैं, सिर्फ ये बॉडी चेंज करते हैं, हम वही रहते हैं। हम तो यही जो प्रोसेस है, ये जब हम जो चेंज कर रहे हैं, तो ये अगर आज मुझे जैसे ए पर्सन को चूज कर रहा है कि उसको अब अपने क्लोथ्स चेंज करने हैं, तो बी बॉडी में उसको जा रहा है, तो जो डेथ अगर हम उसको बोले तो वो क्यों होगा? क्योंकि उसके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इस बॉडी के खत्म हो गए, हाँ। और अब उसको बी बॉडी मिलेगी। हाँ, अब वहां उसको- पे वो न्यू अपने अब मैं कर्मास। आपको एक बात बताता हूँ, 3 तरह की सोल्स होती हैं। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा टॉपिक गहरे में जाते हैं। 3 तरह की सोल्स होती हैं, बैड सोल्स, गुड सोल्स, बेसिक सोल्स, नॉर्मल सोल्स। ये सोल्स और ये सोल्स बहुत लंबा वेट करती हैं कोई ना कोई बॉडी को पाने के लिए। बहुत अच्छी सोल को भी बहुत टाइम लगता है कोई अच्छी फैमिली चूज करने में, कोई अच्छी पर्टिकुलर सिचुएशन चूज करने में, कि वो उस सिचुएशन में बर्थ ले। आप नोटिस करोगे ताओ, लाओ त्से, चेंग तजू, भगवान बुद्ध, ये सब एक ही टाइम पर हुए। इतने सारे महान हस्तियां एक ही टाइम पर हुई। क्यों एक ही टाइम पर हुई? वो उस समय पृथ्वी की सिचुएशन थी कि इतनी सारी गुड सोल्स ने इकट्ठे जन्म लिया और प्रकृति को, पृथ्वी को एक लेवल ऊंचा उठाया। इसी तरह से बैड सोल्स, हिटलर के टाइम पर जितनी बैड सोल्स थी, हिटलर का जन्म हुआ, हिटलर के आसपास जितने युद्ध हुए उस समय, जो 5 साल आप रिसर्च करना उस समय कौन कौन लोग थे, वो बैड सोल्स ने भी बड़ी वेट की पृथ्वी पर ऐसी सिचुएशन आने के लिए कि ये सब इकट्ठे जन्म ले सकें। और जो बेसिक सोल्स होती हैं ये बार बार इधर से उधर भटकती रहती हैं। आप, हम मरे 21 दिन में दोबारा पैदा हो जाते हैं। कुछ शास्त्र कहते हैं कि 21 घंटे में तुम्हारा अगला जन्म हो भी जाता है।
21 घंटे में तुम योनि तलाश कर लेते हो, तुम कंसीव हो जाते हो कहीं और। अब यदि जागते हुए मृत्यु हो तो जागते हुए जन्म होता है। होता क्या है, हम मृत्यु से कुछ क्षण पहले बेहोश हो जाते हैं, कुछ क्षण पहले हम डेड हो जाते हैं, जिसको मैंने आपको अभी कहा था एक लेसन पढ़ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड ब्रेन डेथ। आपके मरने के 7 मिनट बाद भी दिमाग चलता रहता है, दिमाग के न्यूरॉन्स एक दूसरे को रिएक्ट करते रहते हैं, और उसी को कई लोग कहते हैं मैजिकल 7 मिनट्स, कि आप उस 7 मिनट में अपना सारा जन्म देख लेते हो, लाश से लेकर अब तक आपने क्या किया। कुछ लोग ये कहते हैं, चलो वहां कहानी और चली जाएगी, मैं उधर नहीं जा रहा। अब जागते हुए यदि तुम जन्म लेते हो, यानी जागते हुए जब तुम्हारी मृत्यु होती है, तो आपका जन्म होता है अमेज़न की तरह। जैसे अमेज़न में आप चूज कर सकते हो ना, तो आप ऐसे ही चूज करोगे, मेरे को इतनी हाइट चाहिए, मेरे को ऐसे के पेरेंट्स चाहिए, मेरे को ऐसे का वातावरण चाहिए। भगवान कृष्ण ने चूज किया कि मेरे को जेल में ही जन्म चाहिए। भगवान राम ने चूज किया कि वो राजा के बेटे हों। भगवान बुद्ध ने चूज किया कि वो राजा के बेटे। हाउ विल दे चूज? You can actually choose your next life, but you need to die in awareness. You need to die while you are awake. अब ऐसा नहीं है कि तुम मृत्यु के समय कहोगे कि हाँ ठीक है तब जाग लेंगे, तब नहीं जाग पाओगे। तुम्हें सारा जीवन उस जागने की प्रक्रिया को देखना होगा, और जब तुम उस जागने की प्रक्रिया, उसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। यू सी डेथ बिफोर डेथ। डेथ में 3 चीजें होती हैं। व्हाट हैपेंस इन डेथ? ओनली 3 थिंग्स हैपेंस इन डेथ। You lose control over your body, you lose control over your breath, and you lose control over your thoughts. तुम्हारा शरीर चला जाता है, तुम्हारी सांस चली जाती है, और तुम्हारे विचार चले जाते हैं। और ये तीनों चीजों को अभी इसी वक्त भी भेजा जा सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो। तुम शरीर इतना ढीला छोड़ सको कि अभी अगर छोड़ दिया तो गिर जाए। तुम सांस इतनी ढीली छोड़ सको कि अभी अगर छोड़ दी तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। ठीक है? और तुम विचार इतने छोड़ सको कि तुम ब्लैंक होकर बैठ जाओ। तो ये एक मेडिटेशन की प्रक्रिया है। सो डेथ और मृत्यु और जीवन के संबंध में हमें कुछ नहीं जानना, हमें सिर्फ जीवन के संबंध में जानना है, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है। और यदि आपके पास लाइट है तो डार्कनेस आपको इफेक्ट नहीं करती। अब 2 सवाल आते हैं, खुद की मृत्यु के दूसरे की मृत्यु। कभी कभी हमें खुद की मृत्यु से ज्यादा दूसरे की मृत्यु से डर लगता है, कहीं इसको कुछ ना हो जाए। मुझे हो जाए चलेगा, लेकिन इसको कुछ ना हो जाए। वो आपकी अटैचमेंट्स हैं। वहां पे यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। आपकी सांस अपनी नहीं है तो वो इंसान आपका अपना कैसे हो सकता है? ठीक है? तो ये बड़ा गहरा लंबा टॉपिक है, किसी दिन रखेंगे जब हम सिर्फ अध्यात्म और ये कहानियों को डिस्कस करेंगे। बट व्हाट हैपेंस इन डेथ इज दैट यू just renew yourself, you just change your clothes, and it's really good to change your clothes. और जो बंदे सुसाइड करते हैं सर, माय बैड सर, बीच में ऐसे इंटरप्ट करते हैं। जो लोग सुसाइड इज द मोस्ट कायरों का काम। मैं कहता हूं सुसाइड वो करता है जिसको जीवन का मतलब नहीं पता। ठीक है? जब आप, इट इज जस्ट लाइक कि आप एग्जाम इसलिए नहीं दे रहे कि आप पढ़े नहीं थे। ठीक है? या पढ़ने के बावजूद भी तुम पेपर नहीं देने गए कि तुम डर गए कि अगर मैं पेपर में बैठ जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी, कि शायद मैं पास ना हो पाऊं। तो सुसाइड इज नॉट अ राइट वे ऑफ एंडिंग लाइफ। अब मैं उस पर बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बट या सुसाइड इज नॉट अ राइट वे टू एंड लाइफ, आई विल से दैट। अगर सुसाइड ही करना है तो इससे अच्छा है किसी के काम आ जाओ। इससे अच्छा है कि किसी के घर फ्री में कोई नौकरी कर लो भाई, किसी के वैसे काम आ जाओ जीवन में। अगर तुम्हारे लिए जीवन व्यर्थ है तो तुम्हारा जीवन किसी और के लिए यूजफुल हो सकता है। सर ये तो चलो, ये तो मैं समझ गया कि हाँ व्यर्थ है, कायरो का काम है, गॉट इट, बट कर लिया किसी बंदे ने, लाइक इट डन। सो अब तब तक उसका जीवन, तब तक वो नेक्स्ट बॉडी नहीं फाइंड कर सकता जब तक उसकी ये बॉडी की लाइफ स्पैन खत्म नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की 40 साल उम्र लिखी है और वो 20 साल में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, अब अगले 20 साल तक उसकी आत्मा भटकेगी। ठीक है? जब वो 40 साल कंप्लीट हो जाएंगे वो नेक्स्ट बर्थ ले लेगा। इसीलिए आपको किसी समय तक उस घर में भूत प्रेत का एहसास हो सकता है,
अब पहले क्या होता हाँ था, यही क्वेश्चन था सर। अब पहले क्या होता था, पहले भूत प्रेत आम दिख जाते थे। आप शिवा की बारात की बात करो, भगवान शिव की बारात पे भूत प्रेत गए थे। पहले भूत प्रेत आम दिख जाते थे क्योंकि सोल्स बड़ी सर पॉजिटिव थी आसपास। एक मिनट ददन जी, ठीक है, आसपास बड़ी पॉजिटिव सोल्स थी। आसपास कौन थे? ऋषि थे, यज्ञ होते थे, परमात्मा के लोग थे, इसलिए भूत प्रेत आम दिख जाते थे। आज वही भूत प्रेत इस शरीर में हैं। आज आपको वही आसपास लोगों के में दिखते हैं। एक ठग रहा है, एक चोरी कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई किसी के साथ धोखा कर रहा है। कौन है वो लोग? वो वही भूत प्रेत हैं जिनको बॉडी मिल गई है। ठीक है, तो यही, मैं भी यही कहने वाला हूँ सर, मैं भी भूत ही हूँ। ठीक है। तो भूतों को शरीर मिल गया है, उनको अब कोई फर्क नहीं है। आजकल उल्टा आपको अच्छी स्पिरिट मिल जाए, इसके ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपको कोई आत्मा दिखे तो वो पॉजिटिव आत्मा हो सकती है, क्योंकि ऋषि वगैरह नहीं है आज की डेट में। ठीक है ना? सो बड़ा गहरा टॉपिक है डेथ एंड बियॉन्ड डेथ। आई विल से गो बियॉन्ड डेथ। डेथ इज जस्ट इल्यूजन एंड यू डोंट हैव टू फियर एनीथिंग। फियर तो होनी नहीं चाहिए ना लाइफ में। किस चीज से डरना है? व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन? ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। मतलब मैं तो आई लिव इन वर्स्ट केस सिनेरियोज पर्सनली, कि व्हाट कुड हैपन इन द वर्स्ट स्टेट। अगर वर्स्ट में ये होगा, एम आई ओके विद इट, विल आई बी एबल टू हैंडल इट, यस ओके देन लेट इट बी। तो ठीक है, देखी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। आई होप दिस मेड सम सेंस। इफ इट डिडंट इट्स फाइन। अकेलेपन से ही डर लगता है कि ये ऐसा अगर हो जाए किसी अपने नियर एंड अच्छा, डियर को आपको तो। डर किससे लगता है पता है? अकेलेपन से। एग्जैक्टली, हु डू यू फियर? अकेला रहना वो नहीं, सबसे ज्यादा पेनफुल नहीं, है। अभी रुको, मैं बताता हूँ। डीप इन योर माइंड द ओनली पर्सन यू फियर इज योर सेल्फ। तुम्हें खुद से डर लगता है। एग्जाम्पल ले लो, ये एक अंधेरी सड़क है और आप यहां से गुजरोगे ना, सीटी मारते हुए गुजरोगे, गाना गाते हुए गुजरोगे कि चल गाना गा लेते हैं, चल सिटी बोल, या किसी अनजाना कोई इंसान भी खड़ा होगा ना, आप उसको कहोगे भैया जरा 1 मिनट साथ चल पड़ो यहां तक। अनजाना इंसान, तुम्हें पता ही नहीं वो कौन है, क्या हो सकता है, लेकिन तुम उसके साथ जाने में कंफर्टेबल होगे, अकेले जाने में कंफर्टेबल नहीं होगे। एक घर है जो खाली पड़ा है, तुम उसमें जाने में कंफर्टेबल नहीं, खाली है ही कोई नहीं वहां पे, लेकिन तुम कंफर्टेबल नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में डर खुद से लगता है, अपने आप से लगता है, अपने अकेलेपन से लगता है। तुमने अभी खुद को ही नहीं जाना, और जब तक तुम खुद को नहीं जान लेते ना, तब तक तुम्हें किसी और को जानने का हक ही नहीं है। यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, एंड द डे यू गेट टू नो योर सेल्फ, you will know everybody. That is the irony. The day you get to know yourself, you will know everybody. और मैं कहता हूं सारी ज्योतिष एक साइड पे रख दो। अगर तुमने खुद को जान लिया ना, तुम सबके बारे में सब कुछ बता सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी के बारे में भी बताओगे, होगा तो वो भी इंसान ही, और तुमने खुद के बारे में जान लिया, मतलब तुमने सभी इंसानों के बारे में जान लिया। ठीक है? सो डोंट बी फियर, हैव फियर ऑफ योर सेल्फ। इसीलिए ना एक रूम है, एक रूम बनाया है, वहां पर साउंड जो है वो -200 आई थिंक 32 डेसिबल्स में है। तो वहां आपको अपने ब्लड तक की साउंड सुनती है, और कहते हैं कि उस रूम में 3 मिनट से ज्यादा आज तक कोई रुका ही नहीं है। क्यों नहीं रुका यार? तुम्हें इतना डर लगता है अपनी ही आवाजों से डर लगता तुम्हें? So you don't have to be feared. Just know yourself, and the day you get to know yourself, you will leave all the fears behind. ठीक है, चलो अब अलविदा, 1.5 घंटा हो गया। हम अब मिलेंगे, कब मिलेंगे? अब हम वेंसडे मिलेंगे, ठीक है? बट या स्टे एक्टिव इन ग्रुप, आस्क मोर क्वेश्चंस एंड यू विल गेट मोर आंसर्स। बाय बाय। Bye.